سے پہلے بات کریں گے وزیر اعلیٰ مریم نواز جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مظفر گڑھ کا دورہ، ملکی تاریخ میں شرمپ فارمنگ کے سب سے بڑے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جھینگوں کی فارمنگ کے لیے امارات کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا مظفر گڑھ کا دورہ، ملکی تاریخ میں شرمپ فارمنگ کے سب سے بڑے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جھینگوں کی فارمنگ کے لیے امارات کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنوبی پنجاب کے لیے ایک اور بڑا کارنامہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملکی تاریخ میں جھینگوں کے سب سے بڑے پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کیا۔ انہوں نے مظفر گڑھ کے نواحی علاقے جھلاڑے شمالی میں شرمپ فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے تالاب میں شرمپ کا جائزہ لیا اور فیڈ بھی ڈالی۔ وزیر اعلیٰ نے شرمپ فارمنگ پروجیکٹ کا فضائی معائنہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شرمپ فارمنگ کے لیے امارات کا بھی اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں 1 لاکھ ایکڑ پر شرمپ فارمنگ کا ہدف مقرر کیا۔ مریم نواز شریف کا کہنا $1 تک زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شرمپ فارمنگ سے 40% تک منافع کی شرح ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب میں ویران اور بنجر زمین کو شرمپ فارمنگ سے قابل استعمال بنائیں گے۔ شرمپ فارمنگ کے لیے فارمرز اور انویسٹرز کو کم از کم لیز پر زمین اور امارات دیں گے۔ شرمپ فارمنگ کے لیے سیڈ، فیڈ اور درکار آلات بھی فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم شرمپ فارمنگ پروجیکٹ پر مبارکباد اور شاباش کی مستحق ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ شرمپ فارمنگ پروجیکٹ میں نوجوانوں کو انٹرنشپ اور جاب کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ محکمہ فشریز پنجاب کے زیر اہتمام شرمپ فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ 2 ماہ کی ریکارڈ مدت میں مکمل کیا گیا۔ اس پائلٹ پروجیکٹ سے پہلی پیداوار اکتوبر میں تیار ہو جائے گی۔ پہلی مرتبہ 50% لوکل اور 50% فارن فیڈ پر شرمپ فارمنگ کی جا رہی ہے۔ 100 ایکڑ پر شرمپ فارمنگ پائلٹ پروجیکٹ سے جھینگوں کی 100 میٹرک ٹن پیداوار حاصل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈپٹی کمشنر آفس میں ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ بھی لی۔ سینیٹر پرویز رشید، مریم اورنگزیب، عظمی زاہد بخاری، ذیشان ملک، ثانیہ عاشق اور دیگر مریم نواز کے ہمراہ تھے۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ کبیروالا کے شہری میں دوران میڈیکل معائنہ مبینہ منکی پاکس کی تشخیص۔ عبدالحکیم کا رہائشی شخص گزشتہ روز دبئی سے پاکستان واپس آیا تھا۔ محکمہ صحت کی ٹیم نے متاثرہ شخص کو ایئرپورٹ سے تحویل میں لے لیا۔ متاثرہ نوجوان کا علاج معالجہ شروع کر دیا گیا۔ متاثرہ کی فیملی یا اہل محلہ میں سے کسی کی ٹیسٹنگ نہ کی جا سکی۔ اطلاع سن کر اہل علاقہ خوف کا شکار۔ کبیروالا کے شہری میں دوران میڈیکل معائنہ مبینہ منکی پاکس کی تشخیص۔ عبدالحکیم کا رہائشی شخص گزشتہ روز دبئی سے پاکستان واپس آیا تھا۔ محکمہ صحت کی ٹیم نے متاثرہ شخص کو ایئرپورٹ سے تحویل میں لے لیا۔ متاثرہ نوجوان کا علاج معالجہ شروع کر دیا گیا۔ متاثرہ کی فیملی یا اہل محلہ میں سے کسی کی ٹیسٹنگ نہ کی جا سکی۔ اطلاع سن کر اہل علاقہ خوف کا شکار۔ ملتان نیشنل ہسپتال کے بن سینٹر سے کروڑوں روپے مالیت کی ادویات چوری ہونے کا کیس ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر علی مہدی کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی۔ انکوائری شروع کر دی گئی ہے۔ ملتان نیشنل ہسپتال کے بن سینٹر سے کروڑوں روپے مالیت کی ادویات چوری کا کیس۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر علی مہدی کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی۔ ملتان نیشنل ہسپتال کے بن یونٹ سے ادویات چوری کا معاملہ۔ چور 2 ماہ پہلے بن یونٹ کے سٹور روم سے 2 کروڑ 38 لاکھ روپے کی ادویات تھیلوں میں بھر کر لے گئے تھے۔ معاملہ سامنے آنے پر ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر علی مہدی کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کی گئی تھی۔ ہیلتھ کیئر اسپیشلائزڈ میڈیکل ایجوکیشن نے بھی انکوائری کمیٹی تشکیل دی اور سیکرٹری معدنیات بابر امان کو انکوائری آفیسر مقرر کیا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے پیڈ ایکٹ کے تحت انکوائری میں ملزمان سے 2 ہفتے میں جواب طلب کر لیا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے سنگین الزامات کی روشنی میں ڈاکٹر علی مہدی، بایو میڈیکل انجینئر، سٹور کیپر اور سیکیورٹی گارڈ سے بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ انکوائری کمیٹی نے متعلقہ افسران سے جواب مانگا ہے کہ سٹور کے داخلی خارجی راستوں پر CCTV کیمرے نصب کیوں نہیں کیے گئے۔ ادویات چوری کرنے والے افراد کی شناخت ہونے کے باوجود نامعلوم افراد کے خلاف FIR کیوں درج کرائی گئی اور وائس چانسلر کے پوچھنے پر ملوث افراد کے نام کیوں چھپائے گئے۔ بایو میڈیکل انجینئر شاکر عباس سے جواب طلبی میں پوچھا گیا ہے کہ CCTV فوٹیج فوری طور پر فراہم کیوں نہیں کی گئی۔ سٹور کیپر شعیب حسن سے سوال کیا گیا ہے کہ سارا واقعہ ہوا تو ادویات کی حفاظت کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے۔ انکوائری کمیٹی 60 روز میں اپنی انکوائری رپورٹ مکمل کرے گی۔ بلال نیازی، روہی، ملتان۔ بہاولپور میپکو سرکل کے میٹر ریڈر صدیق بلوچ کی عجب کرپشن کی غضب کہانی۔ مسجد کا بل وصول کرنے کے باوجود بھی ادا نہ کیا اور خود ہی بل کی عدم ادائیگی پر مسجد کا میٹر کاٹنے پہنچ گیا۔ شہری شکایت لے کر میپکو بہاولپور سرکل آفس پہنچ گیا۔
बहावलपुर मैपको सर्कल के मीटर रीडर सदीक बलोच की अजब करप्शन की गजब कहानी। मस्जिद का बिल वसूल करने के बावजूद भी अदा ना किया और खुद ही बिल की अदम अदायगी पर मस्जिद का मीटर काटने पहुंच गया। शहरी शिकायत लेकर मैपको बहावलपुर सर्कल ऑफिस पहुंच गया। बहावलपुर में मैपको एहलकार ने मस्जिद को भी न बख्शा। मीटर रीडर सदीक बलोच का अनोखा कारनामा, मस्जिद का बिल वसूल करने के बाद भी अदा न किया और फिर डटाई ऐसी कि अदम अदायगी पर खुद ही मस्जिद का मीटर काटने पहुंच गया। शहरी बिल समेत शिकायत लेकर मैपको बहावलपुर सर्कल ऑफिस पहुंच गया। मीटर कटन वास्ते पहुंच गया, उन्होंने आखे सी ये बिल तुसा भर दो, अगला बिल तुहाडा कटौती थी ते आवे सी, लेकिन वल भी नहीं आया। असां दोबारा वल बिल भर दिते से। हुण एमडी साहब आदन भी मीटर रीडर सदीक बलोच जड़ा है, वो आंदे उनके कोल ते को पैसे वापस कहंदे ने, ना वो पैसे देंदे पे ना सारा बिल कटौती थी ते आंदा पैसा किदे बनू। शहरी का कहना था कि मस्जिद का माह अगस्त का बिल मीटर रीडर सदीक बलोच ने खुद ही वसूल किया और हमें बिल अदा करने को बताकर बिल अदा नहीं किया। इसके बाद खुद ही अदम अदायगी पर मस्जिद का कनेक्शन काटने पहुंच गया। अफसरान भी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता और मौजूदा महीने का बिल अदा करने का कहा गया है। अफसरान ने मीटर रीडर से पैसे वापस दिलाने की यकीन दहानी करवाई है। शहरियों ने मैपको हुक्काम से मुतालबा किया है कि इदारे में निचली सतह पर पाई जाने वाली करप्शन का फौरी खात्मा किया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। खैरपुर टामेवाली में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन की नजर हो गया। रिटेलर्स का खवातीन को लूटने का अनोखा कारनामा। दूर दराज से आई खवातीन को कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर लो है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे। जिन खवातीन से डील हो जाती है उनको रकम मिल जाती है। जिन खवातीन से डील हो जाती है उनको रकम मिल जाती है। खैरपुर टामेवाली में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन की नजर हो गया। रिटेलर्स का खवातीन को लूटने का अनोखा कारनामा। दूर दराज से आई खवातीन कहती हैं आपका ब्लड प्रेशर लो है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रही। खैरपुर टामेवाली में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर करप्शन का गढ़ बन गया। रिटेलर्स मुख्तलिफ तरीकों से मुस्तहिक खवातीन को लूटने लगे। दूर दराज से आई खवातीन को कहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, इसलिए फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहे। जड़ा है फिंगर नहीं आंदे आदन त्रिजड़ी मारे किराया भर भरते ते पैदल टोट दे थक पौनी आए ते पैसे भी आए खड़े ते फिंगर नहीं आंदे। दूसरी जानिब खवातीन का कहना है कि रिटेलर्स ने सेंटर के बाहर अपने बंदे खड़े किए हुए हैं जो खवातीन से मुकमका करते हैं। जिनसे डील हो जाती है इनको रकम मिल जाती है, बाकी खवातीन सारा दिन जलीलो ख्वार होकर खाली हाथ वापस घर चली जाती हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब और आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एतजाज हैदर के साथ मुश्ताक जोया, रोही, खैरपुर टामेवाली। अब रुख करेंगे बहावलनगर का। महकमा एजुकेशन में ई ट्रांसफर्स में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला। प्राइमरी स्कूल टीचर की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू। प्राइमरी टीचर आसिम ने ई ट्रांसफर में बेज़ाब्तियों की शिकायत की थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया कि अब बहावलनगर में महकमा एजुकेशन में ट्रांसफर्स में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला। प्राइमरी स्कूल टीचर की शिकायत पर इंक्वायरी शुरू। प्राइमरी टीचर आसिम ने ई ट्रांसफर में बेज़ाब्तियों की शिकायत की थी। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इलेक्शन के गैर हतमी नताइज का ऐलान। सदर, सीनियर नायब सदर कॉर्पोरेट क्लास से वसीम अख्तर, मोहम्मद सरफराज। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर हिना इश्तियाक, इरम इकबाल बिला मुकाबला मुंतखब। हतमी नताइज का ऐलान 28 सितंबर को किया जाएगा। हतमी नताइज का ऐलान 28 सितंबर को किया जाएगा। आपको बता रहे हैं मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इलेक्शन के गैर हतमी नताइज का ऐलान। सदर, सीनियर नायब सदर कॉर्पोरेट क्लास से वसीम अख्तर, मोहम्मद सरफराज मुंतखब। खवातीन की मखसूस नशिस्त पर हिना इश्तियाक, इरम इकबाल बिला मुकाबला मुंतखब। हतमी नताइज का ऐलान 28 सितंबर को किया जाएगा। अब आपको बताएं, अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 10% कमी का ऐलान किया। इसके बावजूद लाहौर से बारास्ता पाकपतन, बेहाड़ी, बहावलपुर, कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस का किराया कम नहीं किया गया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम तक न पहुंच सका। पाकिस्तान रेलवे ने किराए में 10% कमी का ऐलान किया। हुकूमती ऐलान के बावजूद लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस का किराया कम न हो सका। पाकपतन, बुरेवाला, बिहाड़ी और बहावलपुर रूट के मुसाफिर हुकूमती राइड से महरूम हो रहे हैं। मुसाफिर कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। दीगर ट्रेनों की तरह फरीद एक्सप्रेस का किराया कम नहीं किया गया। हुकूमत किराए में कमी का ऐलान पर अमल दरामद करे। हम तो यही कह रहे हैं कि जितना कमी होगी उतनी जो है आवाम के लिए बेहतर है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दिया तो किराए में भी कमी करनी चाहिए। बाबा फरीद एक्सप्रेस वालों को चाहिए कि वो कम करें। बाकी गाड़ियों का किराया कम हुआ है, हर चीज़ का किराया कम हुआ है। ये फरीद एक्सप्रेस का बिल्कुल किराया कम नहीं हुआ। मुसाफिरों को बहुत तंगी है किराए की वजह से। दूसरी तरफ स्टेशन मास्टर बुरेवाला का मौक़िफ़ है कि फरीद एक्सप्रेस लीज पर है, ठेकेदार ही किराए में कमी पेशी का जिम्मेदार है। कैमरा टीम के साथ काशिफ चौधरी, बुरेवाला। शहर ओलिया में सब्जियों और फलों की मार्केट में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। दुकानदारों ने मनमर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। अशिया खुरनोश की बढ़ती कीमतों से शहरी परेशान। जिले इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। मुल्तान में सब्जियों और फलों के दाम बेलगाम। सरकारी और मार्केट लिस्ट में भी वाज़ेह फर्क। सरकारी नर्खनामे में अदरक 560 और लहसुन 480 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 700 और लहसुन 600 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 118, टमाटर 92 और हरी मिर्च 70 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में शिमला मिर्च 210, अरवी 180 और भिंडी 160 रुपए फी किलो दस्तियाब है। टिंडे 300, करेले 190 और फूल गोभी 180 रुपए फी किलो फरोख्त। फलों में अंगूर 400, सेब 300 और अमरूद 250 रुपए फी किलो फरोख्त। जापानी फल 280, ग्रेप फ्रूट 100 और मुसम्मी 110 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आड़ू 450, अनार 400 रुपए फी किलो और केले 170 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से सब्जियों और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम का किसान कार्ड मरकज का दौरा। रोही से गुफ्तगू में उनका कहना था किसान कार्ड मेरिट पर मिल रहे हैं, इसके लिए किसी सिफारिश और रिश्वत की जरूरत नहीं। मुल्तान से मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम कहते हैं कि किसान कार्ड वजीर आला मरियम नवाज का इनकलाबी इक़दाम है। किसानों को बाइज्जत तरीके से कार्ड मिल रहे हैं। मुल्तान के 6500 किसानों के लिए अब तक कार्ड बन चुके हैं। किसान कार्ड जो है वो उसका जो है तकसीम शुरू कर दी गई है मुल्तान ज़िले में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन 6500 किसानों ने मुल्तान में ये अप्लाई किया है और 1.5 लाख रुपए तक की रकम जो है वो किसानों के कार्ड्स में ट्रांसफ़र की जाएगी हर 6 महीने में, हर फसल पे। सलमान नईम ने मुल्तान में किसान कार्ड मरकज का दौरा किया। इस मौका पर रोही से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि किसान कार्ड के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। किसान कार्ड के जरिए अब ट्रैक्टर पर भी सब्सिडी मिलेगी। किसान कार्ड पर 1.5 लाख तक कर्ज मिलेगा। इनको ट्रैक्टर्स दिए जा रहे हैं सब्सिडी के तौर पे। अभी जो है वो ये किसान कार्ड के साथ ही इनके ट्रैक्टर्स भी अप्लाई हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसानों को जो इंशाल्लाह नवाजने का जो सहरा जाता है वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सर जाता है। हुकूमती पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली का मजीद कहना था कि किसान कार्ड ने किसानों के नाम पर की जाने वाली सियासत खत्म कर दी। 1 एकड़ से 12 एकड़ तक के किसानों को मैसेज करने पर कार्ड मिल रहा है। कैमरामैन मुगीर शाह के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में मेंबर सूबाई असम्बली सलमान नईम की गला मंडी आमद। सदर अंजुमन ताजरान गला मंडी ने सलमान नईम का इस्तकबाल किया और गला मंडी के मसाइल से आगाह किया। एमपीए का कहना था कि मंडी के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। एमपीए सलमान नईम और असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख की मुल्तान मंडी आमद। अंजुमन ताजरान ने एमपीए को गला मंडी के मसाइल से आगाह किया। सलमान नईम का कहना था कि पंजाब हुकूमत से फंड मंजूर करवा के मंडी के मसाइल हल करवाएंगे। मुल्तान गला मंडी को मॉडल गला मंडी बनाएंगे। मैंने इनको बड़ी जो है एश्योरेंस अपनी तरफ से दिलाई है कि मेरी तरफ से जो भी हेल्प आपको रिक्वायर्ड होगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इंशाल्लाह वो अप्रूवल्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगी। और स्टेक होल्डर्स की भी गुजारिश यही है कि भी जो है ना इस मंडी को मॉडल मंडी बनाना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी तारीखी मंडी है
और जनूबी पंजाब और एशिया की सबसे बड़ी मंडी। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समीद शेख का कहना था कि विहाड़ी रोड पर वाक़या गला मंडी लीगल है, बाकी गला मंडियों को चलने का कोई हक नहीं। गैर कानूनी गला मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन करके इनको बंद करेंगे। जो लीगल ऑथराइज गला मंडी है सिर्फ उसी को चलने का हक है। अगर कोई ऐसी गला मंडी है जो अनऑथराइज है, जिसको हक नहीं है चलने का या जिसको ऑथराइज नहीं किया, उसको राइट्स नहीं मिले हुए सूबाई हुकूमत की तरफ से, उसको बिल्कुल बंद होना चाहिए और हम लोग इसके लिए भी ऑपरेशन करेंगे, उनको बंद करेंगे। सदर गला मंडी हाजी शाहिद आलम और सदर मेन गेट गला मंडी राजा मुदस्सिर का कहना है कि एमपीए सलमान नईम के शुक्रगुजार हैं। इन्होंने हमारे मसाइल सुने और तरजीह बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी करवाई है। सुलेमान नईम साहब आए, एसी साहब आए, मंडी को देखे, उन्होंने वादा किया कि हम मंडी की साफ सुथरी और 80 प्लेटें सुलेमान नईम ने देने का वादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि इन्होंने हमारे से वादा किया, इनकी सोच से बाहर पूरी गला मंडी इनके साथ चलेगी। हमारे मसाइल थे जो उन्हें हल कराने की यकीन दहानी कराई है और हमें फंड भी दिलाएंगे और हमारे नए जो सड़कें सीवरेज लाइन के मामले हैं वो हल कराएंगे। इंशाल्लाह नई सड़कें बनेगी और नई सीवरेज लाइन गिरेगी। एमपीए सलमान नईम ने गला मंडी के लिए अपने फंड से 80 लाइट्स भी जारी करवाई। कैमरामैन ताहिर अब्बास के हमरा फराज रमजान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कारी जफर इकबाल शरीफ सीनियर नायब अमीर और मियां अनस जफर नायब अमीर मुंतखब हो गए। शहरियों का नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। रहीम यार खान में जमीयत उलमा इस्लाम के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल। मारूफ मजहबी स्कॉलर कारी मोहम्मद जफर इकबाल शरीफ सीनियर नाइब अमीर और उनके साहबजादे मोहम्मद अनस नाइब अमीर मुंतखब हो गए। नौ मुंतखब अहदेदारान को सियासी, समाजी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात समेत शहरियों की तरफ से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी। कारी मोहम्मद जफर इकबाल शरीफ का कहना था कि बचपन में ही जमीयत उलमा इस्लाम में कारकुन के तौर पर काम किया। हमेशा पार्टी के कायदीन ने मुझ पर एतमाद करके जिम्मेदारी सौंपी। कारी मोहम्मद जफर इकबाल शरीफ का मजीद कहना था कि हमेशा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम देने की कोशिश की और पार्टी को मजबूत करने में अपने हिस्से का किरदार अदा किया। इस ओहदे पर भी कायदीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। इंशाअल्लाह जमात को मजबूत करने के लिए जो भी मुमकिन है वो करेंगे। और ये पहला मौका था कि जिला रहीम यार खान में एनए की 6 सीटें हैं और एमपीए की 13 सीटें हैं। 3 एनए 11 एमपीए की सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और इंशाअल्लाह आइंदा भी एनए और एमपीए और इसके अलावा ग्रास रूट्स के ऊपर जो है अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और इंशाअल्लाह उनकी कामयाबी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। नौ मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि जिला में जमीयत उलमा इस्लाम का पैगाम आम करेंगे। आइंदा इलेक्शन में जीत जमीयत उलमा इस्लाम की होगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर, खानेवाल से असासा धरने के लिए लाहौर रवाना हो गए। असासा का कहना था कि मुतालबात मंजूर होने तक धरना जारी रहेगा। पंजाब सरकार 13,000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट करने जा रही है। सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ असातिज़ा ने धरने का ऐलान किया था। खानेवाल से असातिज़ा धरने में शिरकत के लिए लाहौर रवाना हो गए। असातिज़ा का कहना था कि इनके मुतालबात जायज़ हैं। ये खानेवाल से काफिला जा रहा है और इंशाअल्लाह पंजाब में हजारों की तादाद में हम वहाँ पहुँचेंगे और हमारे मुतालबात लीव एनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी, स्कूलों की निजकारी और अपना 17A के कानून की वापसी, अपना असातिज़ा की रेगुलाइजेशन, पे प्रोटेक्शन, ये हमारे मेन मुतालबे हैं। असातिज़ा का मजीद कहना था कि पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। धरना तवील हुआ तो इंतजामात मुकम्मल हैं। पंजाब भर के जुमला असातिज़ा की जितनी भी तंजीमें थी वो सारी याकजा हो गई हैं और आज पूरे पंजाब से असातिज़ा की जितनी तंजीमें वो सारे मिलकर एहतजाज कर रहे हैं और जो भी हुकूमत लाए अमल बनाएगी हम उसके अगेंस्ट पूरी तरह एजिटेट करेंगे, रैलियां निकालेंगे, गिरफ्तारियां अगर अमल में है तो गिरफ्तारियां भी देंगे। तस्लीम मुतालबात गवर्नमेंट जितने भी हमारे खिलाफ इकदाम करेगी हम सब उनकी मजम्मत भी करेंगे और उसके खिलाफ पूरी तरह से बहमत भी करेंगे। असातिज़ा का काफिला एहतजाज करता हुआ 3 बसों के जरिए लाहौर की तरफ रवाना हुआ। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही, खानेवाल। मियांवाली इंतजामिया का तजावुजात माफिया के खिलाफ घेरा तंग। इंतजामिया ने बल्लोखेल रोड से तजावुजात को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अहमद नून का कहना है तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हर बाजार और इलाके में किया जाएगा। मियांवाली इंतजामिया शहर को तजावुजात से पाक करने के लिए मुतहरिक। इंतजामिया ने बल्लोखेल रोड से तजावुजात को खत्म करने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सलमान अहमद नून का कहना था कि लोग ज़हन से निकाल दें कि 1-2 बाजार के बाद ऑपरेशन खत्म कर दिया जाएगा। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन हर बाजार और हर इलाके में किया जाएगा। शेड की आड़ में दुकानदार सरकारी अराजी पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आया हूँ, तमाम दुकानदारों को यहाँ पे आके मिला भी हूँ।
इसके बावजूद इन्होंने शेड्स रिमूव नहीं किए। अब शेड की मद में इनकी इंक्रोचमेंट बढ़ जाती है, इनके फ्रीज़र, इनकी सामान सारा बाहर आ जाता है। तो जिस तरीके से हमने वता हिल रोड के ऊपर मियांवाली में आज से 3 दिन पहले हमने ऑपरेशन किया था, उसी तरह से आज हमने किया है। जब हमने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह दुकानदार खुद ही अपनी मदद आपके तहत अपने रिमूव कर रहे हैं, शेड्स को रिमूव कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 घंटे में हमारी ये जितनी भी ये रोड है ये साफ सुथरी क्लियर हो जाएगी और आवाम के लिए गुजरने की अच्छी जगह बन जाएगी हमारी। असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मुनीर अहमद जाफरी का कहना है कि नोटिस का वक्त मुकम्मल होने के बाद फौरी ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। नोटिस पर अमल दरामद करने वाले दुकानदार नुकसान से बच जाएंगे। अंजमन ताजरान को इसमें एतमाद में लिया गया था कि आप दुकानदारों को कहें कि ये रिमूव कर दें जो उनके छज्जे हैं, तो अगर उन्होंने नहीं किए तो लाजमी बात है फिर इदारा अपनी हरकत में आया है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो खुद रिमूव कर दें, या अगर रिमूव नहीं तो हम करेंगे। और ये ड्राइव जो है पूरे शहर में इंशाअल्लाह बगैर किसी उसके जारी रहेगी। सलमान अहमद लोन का मजीद कहना था कि 2 दिन बाद मेन बाजार में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मियांवाली में मवेशी पाल हजरात के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत की तरफ से बछड़े और कट्टे पाल हजरात को लाइव स्टॉक कार्ड फराहम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का मवेशी पाल हजरात के लिए एहसन इकदाम, बछड़े और कट्टे पाल हजरात को लाइव स्टॉक कार्ड फ्राहम किया जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर मतियुल इस्लाम कहते हैं कि 80 सतर पर मैसेज करके रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। जवाबी मैसेज 9211 पर भेजा जाएगा। नादरा और अर्बन यूनिट जानवरों की तस्दीक करेगा। रजिस्ट्रेशन लेटर पर बैंक ऑफ द पंजाब कार्ड जारी करेगा। लाइव स्टॉक कार्ड पर बंडा और दीगर मिनरल खरीदे जा सकेंगे। सबसे पहले वो अपना आईडी कार्ड नंबर 8070 पे मैसेज कर देगा। जैसे ही वो मैसेज करेगा वो उस लाइन में लग जाएगा रजिस्ट्रेशन वाले, पहले आइए पहले पाइए किस बुनियाद पे। हमारा जो अपनी 9211 की वेबसाइट है उससे उसकी तस्दीक होगी कि वो वाकई लाइव स्टॉक फार्मर है। नादरा उसको वेरीफाई करेगा कि ये वाकई ही पंजाब का रहायशी है और ये आईडी कार्ड नंबर उसके नाम पे है। उसके बाद अर्बन यूनिट एक इदारा है जो कि उसके बच्चे और कट्टों की तस्दीक करेगा। जैसे ही उसकी तस्दीक हो जाएगी उसको मैसेज आ जाएगा, वो बैंक ऑफ पंजाब में जाकर अपना लाइफ स्टॉक कार्ड वसूल करेगा। एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का कहना था कि बेवा और नादार खवातीन में जानवर तकसीम करने का अमल जनूबी पंजाब में शुरू हो चुका है। जल्द ही सेंट्रल पंजाब में भी तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। अभी ये स्कीम जनूबी पंजाब में पहली फेज में आई है। इससे अगली जो फेज है उसमें ये सेंट्रल पंजाब में आ जाएगी, तो इंशाल्लाह ताला हम पर उम्मीद है कि अगली फेज में मियांवाली में भी आ जाएगी। एडिशनल डायरेक्टर मतियुल इस्लाम का मजीद कहना था कि हुकूमत पंजाब दीगर इदारों की तरह महकमा लाइफ स्टॉक पर भी खसूसी तवज्जो दे रही है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खानेवाल में आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना है कि वसाइल के मुताबिक आबादी से बच्चों की तालीम, सेहत और घरेलू मुआशी इस्तेकाम आता है। खानेवाल इंतजामिया और जीपाइको एनजीओ के इश्तराक से आबादी को कंट्रोल करने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनाकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना है कि खानदानी वसाइल के मुताबिक आबादी होने से बच्चों की बेहतर तालीम, सेहत और घरेलू मुआशी इस्तेकाम आता है। और बुनियादी मकसद आज के दिन का ये है कि हम अपनी एक शऊर पैदा करें लोगों के अंदर कि वो अपनी आबादी और मसाइल और वसाइल के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करें, ताकि हम अपने वसाइल को बेहतर तरीके से बरूए कार लाते हुए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत, सेहत के ऊपर जो हमने अखराजात करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं, लोगों ने करने हैं, वो एक बैलेंस्ड तरीके से किया जा सके और एक खुशहाल माशरा परवान चढ़ सके। चिपाइको एनजीओ की नुमाइंदा कमल कयूम का कहना था कि तेजी से बढ़ती आबादी पाकिस्तान के मुआशी इस्तेकाम के लिए बड़ा चैलेंज है। आबादी कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं। हम यहाँ पे ख़वातीन को इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं कि ये इंजेक्शन खुद से घर पे कैसे लगाया जा सकता है। ख़ानदानी मनसूबा साजी की जो ज़रूरियात हैं उनको घर पर आप खुद से कैसे मैनेज कर सकती हैं और अपनी सेहत का ख्याल खुद से कैसे रख सकती हैं। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है जहाँ पे हेल्थ सिस्टम के ऊपर भी बर्डन कम हो रहा है और जहाँ पर ख़वातीन का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होता है, जहाँ पे उन्हें आने जाने में जो अखराजात का सामना करना पड़ता है, ये इंजेक्शन उनके इन माशी मसाइल का भी एक हल है। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर का कहना है कि इनकी टीम गांव-गांव जाकर आबादी को कंट्रोल करने की आगाही दे रही है। जो अनमेट नीड है वो 19% है, यानी ऐसे लोग जो पॉपुलेशन वेलफेयर की फैसिलिटीज तक नहीं पहुंच पाते, उस ब्रिज को हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब लोगों को इसकी अवेयरनेस हो जाएगी तो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी।
सेमिनार के आखिर में आबादी को कंट्रोल करने की आगाही देने वाली टीम में एजाजी शील्ड भी तकसीम की गई। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद रदीब मुगल, रोही खानेवाल। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।